Good morning, students. Our today's topic is work energy theorem under constant force. So the statement of the theorem is the work done by the net force acting on a body is equal to the change in the kinetic energy of the body. It means if a constant force is acting on a body and it brings a change in its velocity or in a positive direction or its kinetic energy, then that change in the kinetic energy must be equal to that work done which is done to make this change. Okay, so for this consider an object of mass m is initially moving with velocity u under a constant force. Suppose the body gets displaced by s and acquires a velocity v. Means the body get accelerate under this constant force. Body get accelerate under this constant force. This situation can be handled by using the equation of motion. According to the third equation, v square is equal to u square plus 2as. This is the third equation of the motion on multiplying by 1 upon m, 1 upon 2m on both the sides, we get half m v square is equal to half m u square plus half m किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी हाफ m इंटू 2as. हमने क्या करा, इक्वेशन ऑफ मोशन लिया, उसको हमने हाफ m से मल्टीप्लाई करा बोथ द साइड्स, तो इट विल बी हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, इट विल बी इक्वल टू m a s. ओके, as per the Newton's second law, as this F is equal to ma, therefore this equation may be written as half m v square, ये half m v square को left side लाएंगे, then it will be minus half m u square and is equal to fs. As we know that v is the final velocity, so half m v square will be the final kinetic energy of the body. Half m u square is the initial kinetic energy of the body and fs is equal to the work done. So therefore it may be written as kf minus ki is equal to w. Yani change in the kinetic energy must be equal to the work done to produce the same change. So this is the work energy theorem under the variable force. अगर हम इसी को अंडर द कांस्टेंट फोर्स, अगर हम इसी को वेरिएबल फोर्स के अंडर करें, यानी अगर हम बात करें कि वर्क एनर्जी थ्योरम अंडर वेरिएबल फोर्स, देन व्हाट वी हैव टू डू, अगेन वी विल कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m initially with velocity u, a force act on the body and the body get displaced by a small amount ds. यानी इस टाइम दिस टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम कंसीडर करेंगे, यानी दूसरा टॉपिक हो गया हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम अंडर वेरिएबल फोर्स. तो स्टेटमेंट इज सेम. नाउ हमने क्या कंसीडर किया, कंसीडर अ बॉडी गेट्स displaced by a small amount ds under a variable force F. So therefore the small work done क्या हो जाएगा, dw is equal to fds. और as we are considering the body get displaced in the direction of the force, तो it will be fds
cos 0 and we know the value of cos 0 is 1, तो dw may be written as f dx. ये हमारी एक कंडीशन ऑब्टेन हो गई. ओके, नाउ वी आर मूविंग फर्दर. We got the relation dw is equal to f dx. Okay, where according to Newton's law, f is equal to ma, where a is the instantaneous acceleration, therefore a may be written as dv divided by dt, which implies dw may be written as m into dv divided by dt into ds. So as we know that ds divided by dt, ds by dt is the value of instantaneous velocity v. It may be written as v. तो स्मॉल वर्क डन dw किसके बराबर हो गया, m, ये हो गया v और dv रिमेन्स. ठीक है. नाउ नेट वर्क डन फ्रॉम u टू v, यानी वेलोसिटी के u से v होने तक का वर्क डन. तो w इज इक्वल टू आएगा इंटीग्रल u टू v mv dv, यानी इसका इंटीग्रल. कैसे सोल्व करेंगे इसको, w इज इक्वल टू इंटीग्रल u टू v mv dv. ठीक है. m एक कांस्टेंट टर्म है, इट कैन बी टेकन एज आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन. तो ये हो गया u टू v और v dv, और v का इंटीग्रल हमको आता है. व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ v? v का इंटीग्रल होता है v की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 u टू v. दिस इज नोन एज द अपर लिमिट एंड दिस वन इज द लोअर लिमिट. देन वर्क डन मे बी रिटन एज m v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, यानी चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. सही है. तो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. तो ये क्या है, ये फाइनल एनर्जी है एंड दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड इज इक्वल टू द वर्क डन. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क एनर्जी थ्योरम अगेन, बट दिस टाइम अंडर द वेरिएबल फोर्स. ओके. Now coming to the next topic, and the next one is gravitational potential energy. Gravitational potential energy. Actually, gravitational potential energy is the amount of work done in bringing an object at a height h above the surface of earth. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से जब हम किसी हाइट तक ले जाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से किसी हाइट तक ले जाने में जो वर्क हमें करना होता है, दैट वर्क डन अंडर द फोर्स इज नोन एज इज स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल वर्ड यहाँ पर क्यों इंट्रोड्यूस हो रहा है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो वी हैव टू डू द वर्क अगेंस्ट इट्स वेट. और वेट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, उसका मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यानी वी हैव टू डू द वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी. ओके. तो इस केस में हमने कंसिडर करा, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इफ वी रेज इट बाय अ हाइट h, देन इट मस्ट स्टोर अ पोटेंशियल एनर्जी विच वी हैव टू कैलकुलेट. ठीक है.
तो हमने क्या कंसिडर करना है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m lying on the surface of earth, ठीक है। तो therefore the required force to lift the object, यानी इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, mg के बराबर होगा। तो देयरफॉर वर्क डन इन राइजिंग द बॉडी by a height h above the earth surface, यानी किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से h हाइट तक रेज करने में वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क हो गया हमारा W, फोर्स है mg और डिस्प्लेसमेंट है h, तो W इज इक्वल टू हो गया mgh। दिस वर्क डन विल स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट एज पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू W एंड इज इक्वल टू mgh। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ गई, mgh के इक्वल आ गई, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी आ गई mgh के इक्वल। अगर हम ये कंसिडर करें कि h इज जीरो, अगर h जीरो है यानी ऑब्जेक्ट इज कैप्ड ऑन द सरफेस, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी जीरो, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। तो फिर से आप समझिएगा, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक लाने का वर्क डन हमने कैलकुलेट करा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए कितना फोर्स चाहिए, जितना इसका वेट होगा। इसका वेट कितना है, इसका वेट है mg के बराबर, विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो mg मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन h, तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया mg आ गया। तो ये वर्क डन इसके अंदर स्टोर होगा एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो फार्मूला हमारा mgh के बराबर आ गया। अब अगर सरफेस पर माने तो सरफेस पर तो h जीरो है, तो h जीरो है तो u भी जीरो होगा, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस विल बी जीरो।